welcome to fifth episode of Poshan Gyan with our very own Dr. Poonam Singhal. Hello Poonam, how are you? Hello, Ketki. I'm good. How are you? I'm good. So, Poshan Gyan, a series where we bring you simple and practical insights into everyday nutrition. I'm your host, and today we are exploring an essential part of our daily diet. That's carbohydrates. They are often discussed, sometimes avoided, and frequently misunderstood. So today, let's take a closer look at what carbohydrates really mean for our health. Joining us, a nutrition expert, Dr. Poonam Singhal, who is guiding us through this conversation. Welcome to the show, Poonam, again. Thank you. So we'll start our first segment, that is understanding carbohydrates. To begin with, could you help us, our listeners especially, understand what carbohydrates are and why they are important in our daily diet? So carbohydrates, they are again the macronutrients in our, amongst all the nutrients. So they are the major sources of your energy. So if you see a 2000 calorie plate, most of your energy comes from carbohydrates, then proteins and your fats. So 60 to 70% of your energy is coming from the carbohydrate source. And so basically what are carbohydrates? These are glucose molecules. So we have different types of carbohydrates, like we have monosaccharides. Mono means one, saccharide means sugar. So 1 unit of glucose, either it can be a glucose or galactose. So these are single sugars. Okay, then they are easily to digest and absorbed by the body. So you must have seen that sometimes क्या होता है, hypoglycemia हो जाता है किसी को, उसका sugar level एकदम low हो जाता है, तो what we do is immediately give him glucose because that's instantly absorbed in the blood and it raises the blood sugar level. Then there is a category called disaccharide, that means two sugar molecules. So your sucrose, fructose, these are disaccharides. Fructose is naturally found in all the fruits. So जितने भी fruit sugar होता है, that is your fructose. Now जो आपकी चीनी है, the table sugar that we use is sucrose. Okay. And then lactose, which is found in your milk, that is a milk sugar. So these are all disaccharides. So these are simple forms of sugar which can be easily absorbed by the body. Now then there is a polysaccharide. Poly means many sugars. So when many sugar molecules are attached together, it becomes a polysaccharide. So the starch that is found in your wheat, rice, okay, in your potato, that is something which is a polysaccharide. So this is how we divide our carbohydrates into monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. So this is like it, and it is the major source of energy for the rural India and as well as for the urban India. Carbohydrates often get mixed reaction in health discussions. How should we ideally look at? They are very much essential for the body because they give you energy first of all, and then they have a protein sparing action. See, when you are taking enough carbohydrates, then proteins are being utilized for repair purpose, for tissue building, for muscle growth. But if you are not taking enough of your carbohydrate, then what will happen? Your proteins will be utilized for that glucose supply, because energy is something that you need for every action. जो भी आप काम करेंगे, movement करेंगे, even thinking, your brain needs glucose. ग्लूकोज पे चलता है. तो आपको जो भी आप काम करेंगे, नहीं तो क्या होगा? What will happen? Your cognitive performance will come down. Okay, if you're not taking enough carbohydrates in your diet, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपको बहुत फटीग्ड फील होगा, थका हुआ फील होगा, और आपकी परफॉर्मेंस जो है, जो होनी चाहिए, वो नहीं होगी. So it's important that you include carbohydrates. Now the question comes, what type of carbohydrates should we consume? So that is a major problem because refined carbohydrates and complex carbohydrates are again two types. Refined is more of starch and more of when you remove the bran layer and when you remove the fiber. So it becomes a refined product. Okay, like your maida, like your suji, okay, these are all refined carbs. But if you are taking any grain with the bran layer, फाइबर के साथ अगर आप खा रहे हो, जैसे ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गया, मिलेट्स हो गए, ये सब फाइबर के साथ अगर हैं तो दे आर
complex carbohydrates, then the sugar is released very slowly in your blood. एकदम से जाके नहीं शूट अप करता है, धीरे धीरे स्लो उसका मैकेनिज्म है, तो स्लोली रिलीज होगी आपके ब्लड में शुगर, एकदम से नहीं रिलीज होगी. So we are into our next segment, types of carbohydrates. Could you briefly explain the difference between simple and complex carbohydrates in an easy way for a... हाँ, again simple carbohydrates are the ones which are easily absorbed by your body, like your glucose, है ना, like your sucrose. अगर आप चीनी खाते हैं तो instant आपको वो मिलता है ना, एक एनर्जी किक मिलता है. तो जो अगर आपको चक्कर आ रहे होते हैं तो आपको क्या करते हैं, जनरली एक टॉफ़ी मुंह में रख देते हैं. अगर किसी को एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है या मिश्री रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको इंस्टेंट ग्लूकोज बॉडी में रिलीज होता है. ठीक है. और अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो जैसे डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल जिनको प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उन लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी ब्लड में ज़्यादा शुगर है, तो उनको जो है धीरे धीरे रिलीज करवाना है शुगर को. एकदम से नहीं चाहिए ना उनको शुगर, नहीं तो ब्लड शुगर लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा. तो जो उनके सेल्स हैं, उनकी कैपेसिटी जो है शुगर लेने की, वो जो है वो कम है. करेक्ट. तो उनके ब्लड में ही शुगर रह जाता है, तो सेल्स तक नहीं पहुंच रहा वो शुगर जो एक्चुअली सेल्स को यूटिलाइज करना चाहिए. तो इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उन लोगों को देने हैं जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल इशू है, जिनको डायबिटीज़ है, और जिन लोगों को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जैसे यंग किड्स हो गया या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो गया, है ना, उन लोगों को हमें रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो वी कैन गिव देम शुगर्स. बट अगेन यू नो नाउ डेज इट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम ऑल्सो, बिकॉज शुगर बोर्ड्स वगैरह स्कूल्स में हैं, क्योंकि आजकल ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं दे आर टू हाई इन शुगर्स. एक जरा सी 100 ml ड्रिंक का बोल रहे हो, बीच में आई गॉट टू नो दैट इवन द मिल्क पाउडर, द फॉर्मूला वी से फॉर बेबीज, दे इंक्लूड शुगर, दे हैव शुगर्स, दैट्स व्हाई उनको नींद आती है ना. सो वी आर एडिंग सो मच शुगर इन च्यवनप्राश, जिसको हम हेल्थ प्रोडक्ट की तरह क्लेम करते हैं, उसमें शुगर्स हैं, आपके प्रोटीन पाउडर्स में शुगर है. तो अब हर चीज़ में अगर हम शुगर इतनी डाल रहे हैं, तो हमारे पूरे दिन का इंटेक जो है शुगर का वो 20 ग्राम्स होना चाहिए. लेकिन 20 ग्राम्स का मतलब यहाँ एक ही जो आपकी पेप्सी की बॉटल, या मैं कोई ब्रांड नहीं नेम करूंगी, या जूसेस होते हैं, फ्रूट जूसेस, उसी में आप 20 to 30 ग्राम्स ले रहे, शुगर आप ले रहे हो एक ही बारी में. 100-200 ml है, एक बार में पिया, उसी में 30 ग्राम 40 ग्राम की शुगर है. तो बताइए, पूरे दिन का कोटा आप जस्ट एक ही ड्रिंक में पूरा कर रहे हो. तो शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है बच्चों का, क्योंकि इतनी शुगरी फूड्स हैं अवेलेबल मार्केट में. तो क्या हो रहा है ना, उससे एक तो शुगर इंक्रीज, बच्चों में भी ये डायबिटीज़ का प्रॉब्लम जो है देखा गया है, देन कैविटीज और ओरल हेल्थ जो उनकी है वो खराब हो रही है. टू नो कि जब मेरे बच्चे को 6 महीने से मैं पाउडर दे रही हूँ, Yes. पाउडर, They all have sugars. शुगर थी, वो इट वाज बैन. So it's better to make your homemade weaning food, या जो घर में बच्चों को खिलाना है ना, हम लोग घर में भी तैयार कर सकते हैं. ट्रेडिशनल सेरेलैक्स जो बाहर Yes. मिलते हैं, जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, हाँ. उसमें भी बहुत हेवी शुगर कंटेंट मिला है. यस यस. तो उससे क्या होता है, बच्चे को आदत पड़ जाती है शुगर की, और इतना शुगर लोड देने से बच्चे को एग्रेशन, बच्चे रात में सोते नहीं है क्योंकि वो इतने हाइपर एक्टिव हैं. शुगर उनको एक्टिव रखती है ना, जब ब्लड में इतनी शुगर है तो मतलब दे आर रेडी टू गो, उनको एक्टिविटी चाहिए फिर ना वो, तो फिर वो इतने हाइपर एक्टिव रहते हैं. तो इसीलिए शुगर्स बच्चों के लिए, सबके लिए हार्मफुल है. बहुत ज़्यादा शुगर से कोई भी चीज़ आप अगर, अगेन आई विल कम टू द सेम पॉइंट, कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है तो वो खराब ही होती है. इट्स हज़ार्डस. तो अभी तक वही था कि देखो, चीनी भी एक लिमिट में ही लेनी चाहिए ना. अभी क्या है, इतने सारे बाहर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. कॉन्फेक्शनरी देख लो आप कोई भी पैकेज्ड आइटम देख लो, शुगर भर के है. तो फिर हमारा जो इंटेक है, जो होना चाहिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है. एंड हाउ डज द बॉडी प्रोसेस दिस डिफरेंट टाइप? सी आई टोल्ड यू दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ग्लूकोज जो है वो बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है बॉडी में. तो इसीलिए वो फायदेमंद, सबके लिए फायदेमंद है, नॉट जस्ट फॉर डायबिटिक्स. बट आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, इसीलिए आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है. इसीलिए मतलब अगर आप ओट्स खा रहे हैं और अगर आप पोर्शन साइज थोड़ा कम ले रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपना, तो आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट फॉर दोज हु हैव मेटाबॉलिक इश्यूज, बट ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन. बिकॉज आजकल बच्चों की डाइट भी मैं देखती हूँ बहुत खराब है, और वो लोग बहुत बाहर का खाना खाते हैं. True. तो कहीं ना कहीं
पेरेंट्स को हम लोगों को बार बार उनको ये प्रैक्टिस में लाना है कि नहीं नहीं घर का ही खाना है. एटलीस्ट वंस अ वीक यू कैन गिव देम सम रिलैक्सेशन, बट नॉट लाइक एवरी डे स्विगी ऑर्डर हो रहा है और बाहर का ही खाना है क्योंकि उसी में टेस्ट आता है. घर में भी आप बहुत टेस्टी बना सकते हैं, बट इट्स जस्ट एन एफर्ट. अब वो एफर्ट कोई नहीं करना चाहता. ट्रू. वो कन्वीनियंस पेरेंट्स को भी चाहिए. पेरेंट्स को लगता है कि अरे यार ठीक है ना, पैसा सबके पास है. सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ेंगे. हाँ, तो आपको एक बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उन पे काम करना पड़ेगा अगर आपको अपने बच्चों की हेल्थ अच्छी रखनी है तो. So we are into our next third segment, that is sources of carbohydrate. What are some common sources of carbohydrates that people include in their everyday meals? सो एवरीडे मील्स में अगर आप देखोगे, अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो आपके राइस जो यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन है वो राइस ईटिंग पॉपुलेशन है. राइस हो गया, नॉर्थ में हो गया चपाती, है ना, ये तो मेजर है जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है. देन इसके अलावा अगर हम सब्जियों में देखेंगे तो आलू है, देन आपकी जो अरबी आती है, अरबी है, सैगो है, ठीक है, देन टेपियोका करके एक वेजिटेबल आती है वो है. देन आपकी अगर आप इसमें देखें और ग्रेन्स में भी डीप जाएंगे तो कॉर्न स्टार्च हो गया, ठीक है, सैगो जो हम साबुदाना है वो खाते हैं वो है. फिर आपका जो मैदा है, मैदा तो रिफाइंड हो गया, है ना, मैदा से बहुत सारी चीजें बनती हैं. आपके भटूरे हो गए, आपके कचौड़ी हो गई, समोसे, सब मैदा से ही. जो मार्केट में स्नैक्स मिलते हैं वो मैक्सिमम या तो राइस फ्लोर या इससे ही बनते हैं. हाँ, राइस फ्लोर तो बहुत कम यूज होता है. हार्डली लाइक मैदा इज मैक्सिमम 80%. पूरा कॉन्फेक्शनरी जितना आप देख लो, पेस्ट्रीज, केक, सब मैदा से बनते हैं. तो मैदा है मेजर जो है ना, मैदा ही है कल्प्रिट. तो जो अगर आप देखो मैदा, ऑयल और शुगर, ये तीन चीजें जो है हार्मफुल यूज होती है. कोई भी बाहर का जो भी हम खाते हैं वो तीन ये चीजें हैं. तो ये सारी चीजें आप सोर्सेज में. बाकी फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो जैसे बनाना हो गया, जो ज्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं, बोलते हैं ना द डायबिटिक पीपल शुड अवॉइड, है ना, लाइक चीकू, ग्रेप्स, बनाना. बट इनको भी अगर हम एक राइट पोर्शन में खाएंगे ना तो उतना हार्मफुल नहीं होगा. बट अगर आपको खाना है मैंगो, 2 मैंगो खाने हैं या पूरा एक मैंगो खाना है प्लेट भर के, देन ऑब्वियसली. बट अगर आप एक छोटा सा स्लाइस ले रहे हैं देन इट विल नॉट कॉज एनी हार्म. सो इट इज ऑल अबाउट हाउ मच यू आर ईट. Among this, which would you consider healthier options and why? The food items you listed. सी इफ यू सी, अगर आप देखेंगे ग्रेन्स में, देन अगर हेल्दी ऑप्शन में जाए, वी हैव oat, we have quinoa, we have millets. All the millets are very healthy because again उनमें फाइबर है, विटामिन्स है, मिनरल्स है ना. तो सिर्फ उनमें स्टार्च नहीं है, उनमें स्टार्च के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बॉडी को जिनकी जरूरत. तो आपके ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए. देन अगर आप फ्रूट्स में जाएं, फ्रूट्स हैव नेचुरल शुगर्स. तो अगर आपको शुगर ही खानी है, मतलब तो बाहर चीनी क्यों खानी है, आप नेचुरल. आजकल कितनी सारी रेसिपीज में देखती हूँ, पीपल आर मेकिंग विद मैंगो without adding any sugar. They are making they are using dates, they are using kishmish, sugar substitutes they are using, and strawberry sugar जो है strawberry यूज करो, उसी का मीठा जो है. सी कहीं ना कहीं you have to change your palate also, your taste also, कि भाई उतना मीठा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं मीठा मिल रहा है थोड़ा, which is good enough. तो आपको चेंज भी करना पड़ेगा थोड़ा सा टेस्ट पैलेट. I used to use fig for my son. Figs, yes, very good source of iron also. I also use figs, किशमिश एंड डेट्स. हाँ, सुबह खाओ, बेस्ट ऑप्शन. बहुत अच्छा है वो, एनर्जी के लिए भी अच्छा है क्योंकि आपके और लेडीज के लिए आयरन है उसमें बहुत ज्यादा, और हार्मोनल इश्यूज के लिए भी बहुत अच्छा रहता है. डेट्स का केक भी बहुत अच्छा बनता है. हाँ, अभी आजकल डेट शुगर भी अवेलेबल है. तो वो चीज रह जाती है कि क्या खाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है, how do traditional Indian food feed into a balanced carbohydrate intake? See, our traditional meal, if you see, we already have balanced way of eating because we take carbs, we take sabji, we take curd, we take salad. So if you see the plate, we have everything. We have dal also. Dal also has carbs. So protein ही नहीं होता खाली दाल में, maximum तो carbs ही होता है. तो अगर देखा जाए तो हमारी Indian meal जो है वो full, if you see, it's a balanced meal.
It has everything. It has curd also, you know, it has protein also, it has carbs also, fats also. So everything is in right proportion, but हमने उसको बिगाड़ दिया because of westernization. तो हमने वो थाली का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, हमने फूड वैल्यूज चेंज कर दिए. पहले था ट्रेडिशन, नीचे खाते थे बैठ के, खाने से पहले एक प्रेयर करते थे, भगवान को याद करते थे, बोलते थे थैंक यू गॉड तूने हमें ये अन्न दिया, है ना. वो सब जो एक रिचुअल है सब खत्म हो गया. अभी सब फोन देखते हुए खाते हैं. खाते वक्त बोलना नहीं होता, खाते वक्त आराम से उसको धीरे धीरे च्यू करके स्लोली स्लोली खाओ ताकि आपके गट में अच्छे से डाइजेस्ट हो वो, और बीच बीच में पानी नहीं पीना. तो ये सारी चीजें हमारे जो फूड वैल्यूज है ना कहीं वो खो गए हैं. हम हमारे इंडियन जो खाद्य पद्धति थी बोलते थे जिसको फूड, जो हमारी टेक्निक्स थी वो साइंस के बेस पे तैयार की गई थी. इट वॉज ऑल साइंटिफिक. अगर देखो आप पत्ते पे खाना खाते थे तो पत्ते, उसका एक रीजन था. खाना जो है उसको जो फ्लेवर्स रिलीज होते थे जो बनाना लीफ में से, और वो खाने में मिक्स होते थे, तो दे यूज टू हैव एन एंटीऑक्सीडेंट यू नो प्रॉपर्टी. कैंसर भी कम उससे कम होता था क्योंकि वो उसमें जो प्लांट में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो खाने में मिक्स हो जाते थे, गरम खाने. अभी क्या हो रहा है, अभी हम प्लास्टिक में खा रहे हैं. जनरेशन मतलब ये जो है ये अभी चल रही है जिसे हम पाल रहे हैं, वो जनरेशन ने ना कड़ी पत्ता निकाल के रखती है बात. हाँ. लेकिन आई गॉट टू नो कि कड़ी पत्ते से 55% ब्रेस्ट कैंसर और 80% कोई भी अदर कैंसर फॉर्म अवॉइड किया जा सकता है. बिल्कुल. ये ऑल जितने हमारी मेडिसिनल, हमारी ट्रेडिशनल डाइट इज एक्चुअली सुपर फूड, बट हम लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं. हमारे को बाहर के लोग आके बोलेंगे कि आपकी डाइट बहुत अच्छी है और आपके उसमें सारे यू नो ऑल दी हर्ब्स वी हैव एडेड, ऑल दी गुड पत्तियां हैं सारी. तो आउट ऑफ इंडिया पता होगा शायद से पूनम, वो लोग इंडिया को फॉलो कर रहे हैं या पता नहीं, वो बर्तन मांजने के उनकी ये टाइम बचा रहे हैं, लेकिन दे यूजुअली प्रेफर बनाना लीफ टू ईट. यस, आई मीन दे वैल्यू इंडियन कल्चर, और हम इंडियंस ही अपना इंडियन कल्चर भूल जा रहे हैं. यूज बनाना लीफ, क्योंकि वो एक मैंने देखा था वीडियो, वो बंदी को 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे रोज सिर्फ बनाना लीफ पे खाना खाते हैं. वो बोलती है उससे मेडिकल ये तो है ही, उससे जो वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो कंपोज बना सकते हैं. तो पहले के जितने के काम कम हो जाते हैं. आप पहले के जितने भी जो भी देखोगे ना रिचुअल्स, वो साइंटिफिकली प्रूवन है और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और वो हेल्थ के लिए. आप सब कुछ देख लो उठा के, हमारे शास्त्रों में जो भी है ना वो सब हमारे एक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वो फेवर करता है. मेरी नानी बताती थी कि अभी तो नहीं, लेकिन उनके टाइम में ना ऐसे अगर खाना खाना है तो सुबह वो उनके पापा के साथ जाके पत्ते जमा करके घर पे आते थे, और जो डंठल रहता है पत्थर वाली घर पे बनाते थे, जो पतरावल बनती थी, वो द्रोण जो बोलते बाउल्स वगैरह सब घर पे बनाते. अरे हम लोग तो, मेरे को याद है कि हम लोग जैसे पहले के टाइम में तो प्लास्टिक बैग्स नहीं होते थे, वो लिफाफों में देते थे, ब्राउन कलर के लिफाफे आते थे और उसमें वो लोग लिक्विड्स के लिए घर से डब्बे जाते थे. हाँ, तो वो जो ब्राउन कलर के लिफाफे कई बार हम घर में बनाते थे. तो बहुत सारी चीजें हमने अपने टाइम में देखी हैं. पता नहीं वो टाइम वापस क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो गया है और इतना कन्वीनियंस लोगों को चाहिए कि शायद वो टाइम वापस नहीं आएगा. आप नहीं बताया ना, किसी 50 रुपए का तो आता है. तो वही देखो, जहाँ पैसे आ जाते हैं ना, कन्वीनियंस आ जाती है, वहाँ हमको कुछ नहीं चाहिए. और आलस आ गया है ना. चैट जीपीटी भी उसका एक हाँ वो बिल्कुल है. तो अभी क्या करेंगे, लेट्स मूव ऑन. So into our next segment. So next question. For individuals managing conditions like diabetes, what kind of carbohydrate choices are generally recommended? Again, as I said, complex carbohydrates, and they should focus on their portion size. कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं खाना. They should have small meals. Okay, small portion sizes, and complex carbohydrates like, again I will repeat, millets they can take because they regulate blood sugar levels. Okay, then they can take oats हो गया आपका. इवन जैसे अभी हम जो आटा खाते हैं, हम मल्टीग्रेन आटा दे कैन गो फॉर, लाइक सोयाबीन उसमें मिला लिया, उसमें और 10 तरह की चीजें, यू नो जैसे रागी मिला लिया, तो 3-4 आटे अलग अलग तरह के मिला के दे कैन मेक अ मल्टीग्रेन आटा, और उसको वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं. बाजरी जवारी की रोटी हो गई है ना. सो दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द ब्लड शुगर लेवल. सो लाइक दिस दे कैन हैव. Is it necessary for everyone to monitor or limit carbohydrate intake? Yes, see, anything which goes beyond can have a
fatal effect. So again, if you are taking sugars, if you are taking carbs also, one has to monitor, because Indian diet is very rich in carbohydrates and it has been found by a study at NIN also कि हमारी जो इंडियन डाइट है वो बहुत कार्ब रिच है. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कार्ब्स को मॉनिटर करना है. मैं ये नहीं कहूँगी कि कम कर देना है, बट हाँ, एटलीस्ट 200 grams of carbs is something that is recommended. Okay, तो उतना खाना है, मतलब 150 to 200 grams. बट आपको किस तरह का खाना है, अगेन आई टोल्ड यू, नॉट द सिंपल एंड रिफाइंड वन, बट मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो आप अपने सुबह के मील में, नाश्ते में कार्ब्स इंक्लूड करिए जरूर. देन जो आपके मेजर मील्स हैं आप उनमें कार्ब्स जरूर इंक्लूड करिए, बट पोर्शन साइज का ध्यान रखें. Our next segment, that is balanced diet and lifestyle. How can one maintain a balance between carbohydrates, proteins and fats in everyday meals? सी एज आई टोल्ड यू कि अगर आपका जो हमारा जो इंडियन मील है या ट्रेडिशनल प्लेट है उसमें ऑलरेडी सब बैलेंस्ड रहता ही है, क्योंकि हम लोग चपाती भी लेते हैं, दही भी लेते हैं, दाल भी लेते हैं, सब्जी भी लेते हैं, तो सब कुछ बैलेंस्ड ही रहता है. आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आप बहुत बाहर का खा रहे हैं, सपोज आप डेली बर्गर, रैप्स, नूडल्स ये सब ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप कार्ब्स खा रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन तो कहीं आ ही नहीं रहा. तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, अपने ट्रैक करना है कि मेरे जो प्रोटीन सोर्सेज हैं कहीं मैं ऐड कर रहा हूँ कि नहीं. पूरे दिन में एग्स भी होने चाहिए, दाल भी होनी चाहिए. फिर जो आप फैट यूज कर रहे हैं, किस क्वालिटी का फैट यूज कर रहे हैं घर में. अगर आप होममेड मील्स पे तो यू कैन कंट्रोल ना, तो आप किस तरह का फैट यूज कर रहे हैं, वो फैट बार बार दोबारा रीहीट तो नहीं हो रहा है. तो उस तरह की चीजें यू कैन चेक. सी इफ यू हैव अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी रिजीम एंड इफ यू आर मतलब बहुत ज्यादा आप दिन में 2-2, 3-3 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको चाहिए होगा कार्ब्स, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी तो आपको ग्लूकोज ही देगा ना. प्रोटीन भी चाहिए होगा आपको, प्रोटीन भी चाहिए होगा, कार्ब्स भी चाहिए होगा. बट अगर आपका कोई एक्सरसाइज ही नहीं है, आप जीरो एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप कार्ब्स खा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, आपका वो कार्ब्स जो है, ग्लूकोज जितना एक्स्ट्रा बन रहा है बॉडी में, आपने जो एक्टिविटी की वहाँ यूटिलाइज हो गया. लेकिन अगर आप बहुत एक्टिव नहीं है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका क्या होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा, फिर आपका एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होगा, आपके फैट वो बन जाएंगे. मतलब यू विल स्टोर एक्स्ट्रा फैट इन योर बॉडी ना, दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर ओबेसिटी. There are many myths around avoiding carbohydrates completely. What is your perspective? No, I think one should not completely avoid carbs, because carbs are needed for, as I said, for energy and for protein. It has a protein sparing action. So you should not avoid carbs completely, because see, glucose सिर्फ एनर्जी नहीं देता, बहुत सारे हार्मोन्स में, एंजाइम्स में भी ग्लाइकोसाइलेटेड और ग्लूकोज जरूरत होती है उसकी. तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि जीरो कार्ब्स, और हो भी नहीं सकता प्रैक्टिकली. अगर आप दाल खा रहे हैं तो दाल में कार्ब्स आ रहा है, आप सोच रहे हैं हम सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं, बट उसमें भी कार्ब्स है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है. कार्ब्स तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये है कि डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी, डिपेंडिंग ऑन योर एज, योर हेल्थ कंडीशन, योर मेटाबॉलिक कंडीशन, you should consume, How can listeners make informed choices when selecting packaged or processed carbohydrates? See, again, when you are first of all, I would say that don't eat packaged food, because again, what food industry is doing is just playing with your emotions and just fooling you around. ठीक है. बट अगर आपको कोई भाई कई बार खाना भी पड़ता है when you are traveling or when there is some situation, तो आप उसमें देखें कि किस तरह का कार्ब यूज किया है उन्होंने. इफ इट इज लाइक मल्टीग्रेन है या रिफाइंड ना अगर कार्ब हो तो बहुत अच्छा है. आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, विद बहुत सारे मैं देखती हूँ ओट्स से बने हुए चीज़ें हैं और किनोआ से बनी हुई चीज़ें हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट. तो एटलीस्ट एक हेल्दी ऑप्शन है, तो वो आप चूज कर सकते हैं. So before we wrap up, could you share a few simple tips for our listeners to make better carbohydrate choices in their daily? See, I would just say that if you know that the product is made of maida or any other refined, even suji is refined carbohydrate, so just try and avoid it, because it is going inside your body and it is doing harm to your body. तो उसको avoid करिए. Then ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने घर में, और अपना एक behavior change बहुत ज़रूरी है कि हमें हमें बचपन से रोटी सब्जी खाने की आदत होती है, रोटी और चावल हमको सिखाया जाता है, बट there is no harm, सब कुछ खाना चाहिए.
तो अगर आप थोड़ा थोड़ा चेंज करें पैटर्न और एक एक दिन एक एक मिलेट भी अगर हम खाएं अपने डाइट में, तो इट कैन ब्रिंग अ बिग चेंज. क्योंकि देखिए रागी जो है कैल्शियम में रिच है, फिर बाजरा है, बहुत सारे जो हमारे मिलेट्स हैं आयरन कैल्शियम में रिच हैं. तो एक एक दिन एक एक मिलेट इंट्रोड्यूस करिए, उसकी खिचड़ी बन सकती है, उसका बहुत कुछ बन सकता है, रोटी बन सकती है. तो वहाँ अगर आप कर सकते हैं चेंज, दैट वुड बी ग्रेट. So final rapid fire. I have a list of different carbohydrates we take in our day-to-day life, and you will have to give them a thing from 10. So I will name it. We will start with rice. Rice. 6. Okay. Wheat. Wheat, okay. 7. Oats. Is 8. Bread. 4. Semolina pasta. Semolina pasta, I would give it a 6. Millets, that is jawar, bajra, ragi. 10. Corn. Corn is also like 6. Potatoes. Potatoes, I would give it 6 only. Sweet. Sweet potatoes, I will give some 8. Green peas. Green peas are good. Lentils, 9. Chickpeas. Yes, 8. Kidney beans. 8. Fruits. Fruits are very good. 9. Dates. 8. As in dates or date powder. 8. Again, milk is good, but आज के टाइम में इतने hormones ये वो. 8 I would say. Milk products included. Curd and all 9. Sugar. 5. Honey. 7. Poonam, thank you for joining us today and sharing Thank you, such valuable Ketki. insights as always. Thank you, Ketki. So you have been listening to Poshan Gyan only on Bodh Hyderabad 90.4 FM, helping you make informed and mindful food choices every day. Remember, a balanced approach to nutrition goes a long way in maintaining good health. Until next time, stay healthy and stay informed and keep listening Bodh Hyderabad 90.4 FM. Pajami.